Good afternoon, and it's pleasure to meet you all on the Friday afternoon. If I am audible, if anybody can just type yeah or y, that is enough. It will help us to know whether we are well audible to you or not. So, today's topic is very important topic, and we are here to discuss regarding the what you call heart complaints. A lot of time people are so a lot of time people are having queries related whether I am having heart disease or not. And next 15 to 20 minutes I will be discussing those things which will make the difference and which will certainly clarify their doubts whether they are having heart disease or not. Coming first regarding the heart complaints. So let me make the slides what I have prepared for you people. So identifying heart disease is somewhat very difficult, but there are some complaints. But before going into the complaints, I will certainly say that it is not only the cardiologists are of same variants. Over the time, the cardiology has evolved, and there are two variants of cardiologists. The cardiologists who work on the plumbing job, we call as interventional cardiologists, means they are taking care of the stents, means any blocks is there, they are opening. If any valve issue is there, they are opening by doing some procedures. The second are the electrophysiologists who works on the electrical circuit of the heart. So these two domains has been divided, and this is important here because some complaint will be totally dealt by the electrophysiologist, which is a different division of the cardiology, and some complaint are most of the time seen by the intervention cardiologist. सो हार्ट के दो तरीके के डॉक्टर, जो एक कहते हैं प्लम्बिंग करने का काम, दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. सो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो लोग देखते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, और जो हार्ट के प्लम्बिंग यानी ब्लॉक्स को ओपन करते हैं उनको कहते हैं हम लोग इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट. और इन कंप्लेंट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से कंप्लेंट को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं और कौन से कंप्लेंट रूटीनली जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट और क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट लोग डील करते हैं. सो फर्स्ट कमिंग टू द हार्ट. सो हार्ट की क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे कंप्लेंट्स आते हैं. सो कमिंग फर्स्ट व्हाट यू कॉल सर्कुलेशन. हार्ट का अपना एक सर्कुलेशन होता है, और इसमें जब ब्लॉक्स आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि कोरोनरी ब्लॉक्स आ रहे हैं, और उस ब्लॉक्स की रीजंस को ढूंढे जाते हैं, उसको ट्रीट किए जाते हैं. और जब एक एक्यूटली एक बैक अगर कभी कभी बंद होता है तो उसको हम लोग ओपन करते हैं, जिसको कहते हैं स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी. दूसरे टाइप के कंप्लेंट्स जो रहते हैं वो हार्ट की जो मसल्स रहती हैं उसमें उसकी पंपिंग अगर रिड्यूस होती है या प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो उसके कारण होते हैं. और तीसरे कंप्लेंट्स जो आते हैं जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी, मीन्स जो हार्ट की अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है उसमें या तो ब्लॉक और या उसमें एबनॉर्मलिटी, शॉर्ट सर्किट जिसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, उसके कारण. सो इट कैन बी अ सर्कुलेटरी इशू, इट कैन बी मसल इशू, और इट कैन बी इलेक्ट्रिकल इशूज़. सो इलेक्ट्रिकल इशू इज़ द कंप्लेंट्स जो रहते हैं, दिस आर डेल्ट बाय द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट. So if you are having electrical problem, directly meet the electrophysiologist. But if you are having circulatory or muscle issue, these are dealt by both the cardiologists, and they deal the different part of the symptoms. What are the heart symptoms or heart diseases symptoms? So the most common, and it is responsible, or we can say it is one of the reason for visiting emergency as well as the OPDs, that is the chest pain. So chest pain, second is the breathlessness, third pedal edema or swelling, easy fatigability, palpitation, loss of consciousness, giddiness and syncope, and sudden cardiac death. So these are the common complaints which is related directly or indirectly with the heart. Chest pain is the one of the important
complaint which is very difficult sometimes to understand whether it is coming from the heart or it is from the lungs, it is from the muscles or it is from the gastric. So सीने में दर्द होना, सांस फूलना, पैर में सूजन आना, थकावट होना, धड़कन आना, बेहोशी होना, चक्कर आना और सडन फैमिली में किसी का एक आकस्मिक डेथ होना या मृत्यु होना, ये ऑल आर द सिम्टम ऑफ द हार्ट डिजीज़. सो इस तरीके की चीज़ें अगर फैमिली में हो रही हैं या इस तरीके की कंप्लेंट्स आपके फैमिली में किसी को है, तो आई विल ट्राई दैट कुछ चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उसको मतलब अप्रोच किया जाए टू द डॉक्टर. सो फर्स्ट पार्ट इज़ द एथरोस्क्लेरोसिस, जो हम बोल रहे थे ब्लॉक्स के बारे में, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डील करते हैं. तो ब्लॉक की जो शुरुआत होती है उसको कहते हैं हम लोग एथरोस्क्लेरोसिस. इट इज़ ए इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और ये जहाँ के ब्लॉक्स को इन्वॉल्व करेगा वहाँ के सिम्टम्स आएंगे. अगर ये हार्ट के खून की नलियों को ब्लॉक करेगा तो हम लोग कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें हार्ट अटैक आता है, एंजाइना आता है और इसमें जो ट्रीटमेंट रहते हैं मेडिसिन फॉलोड बाय इंटरवेंशन, जो कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट लोग करते हैं, स्टेंट लगाना. दूसरा रहता है कि यही एथरोस्क्लेरोसिस अगर ब्रेन में जाता है तो ये स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पर आजकल थ्रोम्बोलाइसिस और समटाइम थ्रोम्बोसेक्शन किए जाते हैं. यही ब्लॉक अगर पैर में डेवलप करता है तो हम लोग उसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, मीन्स चलने के टाइम में पैर में दर्द आना और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं ये तुरंत घट जाता है. एंड फोर्थ, कभी कभी ये जो किडनी की खून की नलियाँ रहती हैं उसको भी इफ़ेक्ट करता है, वेयर वी कॉल एज रीनल इस्कीमिया, मीन्स ब्लड प्रेशर का भी डेवलपमेंट किसी किसी मरीजों में होता है. सो एथरोस्क्लेरोसिस कहा जाए तो कोई ब्लॉक जो कि फैट डिपोजिशन, जो कि वेरी सिंप्लीफाइड वे है बट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो कि डेकेड्स ओवर द डेकेड डेवलप करता है. और इसमें ब्लॉक्स जब आते हैं जिस एरिया को इन्वॉल्व करते हैं उसके सिम्टम्स होते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम द चेस्ट पेन जो होते हैं, अगर कोरोनरी ब्लॉक हो गए तो उसके सिम्टम्स आते हैं और वो होता है चेस्ट पेन. नाउ कमिंग टू द चेस्ट पेन, जो हार्ट पेन के बारे में लोग बोलता है या सीने में दर्द हो रहा है जो कि हार्ट के कारण है कि नहीं, इस पर a lot of doubts are there. Which pain we should think that it is related to the heart. So chest pain which is originating or which is coming due to the ischemia, or we can say decreased supply of oxygen to the heart muscles, we call as angina. और उसका एक typical character होता है. This character is very very important to know, and if you are having in any time, you should directly visit the cardiologist and he will certainly give you the right treatment for it. So एक ऐसा पेन जो आपको मतलब सीने में होता है, 1 मिनट. सो सीने में होता है जो कि कहते हैं कि सीने में एंड द फ्रंट ऑफ द चेस्ट गोइंग टू द बैक और गोइंग टू द शोल्डर, going to the we can say jaw muscle, jawbone, or sometime up to the umbilicus, मतलब नाभि तक या जॉबोन की तरफ या लेफ्ट हैंड. ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हाथ तक ही रहेगा, ये राइट हैंड में भी जा सकता है कुछ लोगों में, किसी मरीजों में बैक साइड में भी जाता है. एंड सम पेशेंट इट इज़ पॉसिबल दैट इट विल बी अगेन टू द नाभि तक चला जाता है, मीन्स अम्बलाइकस तक. सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट सेंसेशन. और ये सेंसेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए क्योंकि इसका एक करेक्टर होता है, वी कॉल एज ए स्क्वीजिंग करेक्टर और हैवीनेस, मीन्स ऐसा समथिंग विच वी कॉल एज सम वेट हैज़ बीन केप्ट ऑन द चेस्ट. यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली टेक द ब्रेथ और स्क्वीजिंग सेंसेशन, हैवीनेस. सो चेस्ट हैवीनेस प्रेशर which increases on walking and relieves on rest और partially relieves on rest, मतलब चलने के टाइम बढ़ता है और बैठने से तुरंत घट जाता है वो सेंसेशन, दैट इज़ कॉल्ड एंजाइना. एंड देन ये जो सिम्टम है वो वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑफ हार्ट डिजीज़. सो अगर आपको चलने के टाइम में सीने में भारीपन आ रहा है और बैठने पे कम हो जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड एंजाइना. And this symptoms to be addressed by a cardiologist or a physician who treats the cardiac diseases, and accordingly उसको medicines start करनी चाहिए.
बहुत सारे टाइम ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो पेन हो रहा है वो गैस्ट्रिक के कारण है या हार्ट के कारण है। सो देर आर सम डिफरेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है समझने के लिए। इफ़ इट इंक्रीजेज ऑन वॉकिंग एंड रिड्यूज ऑन रेस्ट मीन्स ये हार्ट के कारण है, जो कि एंजाइना हम लोग बोल रहे थे। समटाइम आप बर्पिंग कर रहे हैं, जैसे ही आप डकार ले रहे हैं आपका दर्द कम हो जा रहा है, देन ज़्यादा चांसेस है कि ये गैस्ट्राइटिस के कारण और यू कैन से एसिड फॉर्मेशन, ज़्यादा एसिड फॉर्मेशन के कारण हो रहा है। इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड विथ स्वेटिंग, आर्म रेडिएशन ऑफ द पेन, गिडीनेस एंड फीलिंग ऑफ डूम, ये बड़ा स्पेसिफिक साइन है। अगर आपको सीने में भारीपन हो रहा है, पसीने आ जा रहे हैं, वो हाथ में भी जा रहा है और साथ में गिडीनेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप डूबते चले जा रहे हैं, मतलब सिंकिंग सेंसेशन आ रहा है, ये बहुत ही स्पेसिफिक साइन है हार्ट के डिजीज़ का। और ये कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द इनिशियल फाइंडिंग और इनिशियल सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक जब भी आएगा इस तरीके के सेंसेशन आते हैं और उस टाइम में आपको एट द अर्लीस्ट नियरेस्ट सेंटर में जाना है जहाँ ईसीजी की फैसिलिटी हो और जहाँ पर फर्स्ट एड मीन्स में जहाँ पर कार्डियोलॉजी की सर्विसेज हो। इट विल मेक अ डिफरेंस। उस समय टाइम बिना बर्बाद किए हुए, बिना गैस की मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किए हुए आप डायरेक्टली हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए या सेंटर जहाँ पर हार्ट की ट्रीटमेंट की जाती है वहाँ पहुँचिए। कुछ टाइम में लोग बोलते हैं कि हम लोगों को पोस्चर चेंज करने पर दर्द घट जाता है या उसमें कोई चेंज होता है। वो यूजुअली पोस्चरल रहता है, मसल्स के कारण रहता है। और बहुत सारे मरीज आके हम लोग बोलते हैं कि पिन एंड नीडल सेंसेशन। सो पिन एंड नीडल सेंसेशन, और दूसरा एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि समबडी हु कैन पिन पॉइंट, कि हमको इस एरिया में पेन हो रहा है, इस एरिया में एक पर्टिकुलर फिंगर से अगर दिखाता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, हम लोग कहते हैं फिंगर पॉइंटिंग साइन। सो अगर कोई आदमी फिंगर पॉइंटिंग साइन कि इस एरिया में सिर्फ दर्द हो रहा है, ये ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट के कारण नहीं है। यूजुअली ये मसल्स और लोकल कॉजेज से हो सकता है। सो इस हार्ट के कंप्लेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि पेन कब आ रहा है, किस व्हेन इट इज़ कमिंग, और उसको क्या बढ़ा रहा है। अगर चलने पर बढ़ रहा है तो ज़्यादा चांसेस है वो हार्ट के कारण है, और बर्पिंग करने पर और ये कैन से डकार लेने पर कम हो जा रहा है, मतलब गैस्ट्रिक के चांसेस ज़्यादा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेन जो कि बहुत सारे टाइम लोग नेगलेक्ट करते हैं, एंड खासकर ये उम्रदार लोगों में, द पर्सन्स हु आर एल्डरली, दे आर हैविंग दैट just after finishing the food, or you can say lunch or dinner or breakfast, they feel some discomfort in the chest, which over the time, over 30 to 40 minutes or maybe 1 hour later, it get totally relieved, and they feel that it is due to the maybe खाना ज़्यादा खा लिए हैं या ज़्यादा खा लिए हैं या गैस के कारण है। इस तरीके का वो लोग मान के इसको बहुत दिनों तक अपने साथ रखते हैं। ये कंप्लेन जिसको कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट, जो कि सीने में आ रहा है, जो कि तुरंत खाने के 40 से 45 मिनट का जो टाइम रहता है उसके टाइम में रहेगा, तुरंत उसके बाद ओवर द टाइम स्लोली रिलीव हो जाएगा। ये भी एक बहुत स्पेसिफिक साइन होता है हार्ट डिजीज़ का, और सीवियर हार्ट डिजीज़ का होता है। यूजुअली क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हार्ट को बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है इंटेस्टाइन में, और हार्ट की खून की नलियों में अगर रुकावट रहती है तो इस तरीके का सेंसेशन आता है। तो जब भी आप हैवी मील लेंगे, खासकर एल्डरली जिनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, उनको बाकी सिम्टम्स नहीं आते, उनको पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना का सिम्टम्स इसको कहा जाता है, एंड दिस सिम्टम इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर हार्ट डिजीजेज। सो खाना खाने के तुरंत बाद 40 से 45 मिनट चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, जो कि बाद में अपने आप रिलीव हो जा रहा है, इट इज़ अ मार्क ऑफ हार्ट डिजीज़। कुछ लोगों को चलने के टाइम में पैर में जकड़ जाता है, जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। मीन्स वाइल वॉकिंग दे आर हैविंग अ स्टिफनेस इन द काफ मसल्स, एंड दिस इज आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट हैपन दैट व्हेन दे आर वॉकिंग वेरी फास्ट, ऑल ऑफ ए सडन द सर्कुलेशन इज नॉट एडिक्वेट टू सप्लाई द मसल्स, एंड दे गेट ischemia, or we can say they are not getting the proper oxygen, so they will start getting stiffness, and this sensation is called intermittent claudication. So पैर का जकड़न जो कि चलने पर आए और बैठने पर रिलीव हो जाए, we call as intermittent claudication.
ये हार्ट की डिजीज़ का नहीं, ये जो पैर की खून की नलियों उसमें रुकावट। अब जिन लोगों को पैर की खून की नलियों में रुकावट रहता है उनमें ऑलमोस्ट 50% पेशेंट, 50 to 70% पेशेंट्स में हार्ट और इवन ब्रेन के सर्कुलेशन में भी इश्यूज़ रहते हैं, एंड दैट्स वाई दे नीड इवेल्युएशन। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंप्लेन, ब्रेथलेसनेस। शंकर महादेवन का परफॉर्मेंस दो के को तो ऐसा लगेगा कि इनको कभी हार्ट फेल हो ही नहीं सकता है। सो ब्रेथलेस तरीके से, जिस तरीके से एक सुर में पूरा गाना इनने गाया, विच इज़ अ रिकॉर्ड। बट ब्रेथलेसनेस के बारे में एक ही बात बोलेंगे कि ब्रेथलेसनेस में आप जो काम पहले कर पा रहे थे, जैसे बात चलते चलते आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपको चलने के टाइम में फ़ोन पर बात करने में हाफी आ जा रही है, जो कि इनिशियल साइन है आपके हार्ट डिजीज़ का, और हार्ट लंग दोनों के डिजीज़ में इस तरीके का मिलता है। दूसरा कंप्लेन रहता है कि आप नॉर्मली जो सोने का जो तकिया यूज़ करते हैं उसमें 2 या 3 तकिए बढ़ते चले जा रहे हैं। और तीसरा, रात में आप सो रहे हैं और एक बैक एक आपको बैठना पड़ जा रहा है। ऑलमोस्ट आप 10 बजे सोने गए और 11:30 से 12 बजे की रात में एक बैक एक जैसा चोकिंग सेंसेशन के साथ बैठे, कम से कम आधा घंटा आपको लगा अपने आप को संभालने में, मतलब सांस को नॉर्मल करने में। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कंप्लेन रहते हैं, मतलब सांस का फूलना, रात में सोने के टाइम में तकिए का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, और रात में सोते सोते एक बैक एक बैठना पड़ा, खिड़कियाँ खोलना पड़ा अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं PND, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। और जो सोते समय आपको सांस फूलता है उसको कहते हैं ऑर्थोपिनिया। और नॉर्मली जो ब्रेथलेसनेस जो हम लोग कहते हैं कि सांस फूलना, उसको कहते हैं सिम्टम ऑफ ब्रेथ। इसमें कोई भी सिम्टम अगर हो रहा है दैट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, खासकर ये 2 ऑर्थोपिनिया एंड PND काफ़ी हार्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। सो जब हार्ट की मसल्स की पंपिंग घटती है तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंप्लेन में आता है, या जो कहते हैं बहुत पॉइंटिंग कंप्लेन है, दैट इज़ अ ब्रेथलेसनेस, सांस का फूलना। सो ब्रेथलेसनेस मतलब सांस फूलना, जो हार्ट फेलियर कह रहे थे कि एक हुआ पहला, हार्ट के अंदर में ब्लॉक्स, मीन्स खून की नलियों की रुकावट, जिसमें चेस्ट पेन आता है, या पैर में खून की रुकावट को उसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, जकड़ा ना जाना चलने के टाइम। दूसरा होता है हार्ट फेलियर, मीन्स हार्ट की पंपिंग वीक हो गई है, उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे। तो पहला सिम्टम तो है ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस ना ले पाना, या काम जिस काम को आराम से आप कर पाते थे उस काम को करने के टाइम में आपको सांस फूल रही है। सेकंड, स्वेलिंग ऑफ द फीट, इसको लेकर बहुत सारे मरीजों में कन्फ्यूजन रहता है, कुछ दवाइयाँ ले रहे रहते हैं उसके कारण भी स्वेलिंग रहता है, और वो सोचते हैं शायद उनका हार्ट या किडनी ख़राब हो रहा है। सो पैर का सूजन आना, स्वेलिंग ऑफ द फीट, क्रोनिक लैक ऑफ एनर्जी, जो काम पहले आराम से कर रहे थे उसमें आपको थकावट हो जा रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ हार्ट फेलियर। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग इन द नाइट ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब आपको 2-3 तकिए यूज़ करना पड़ रहा है। पेट का सूजन होना या लॉस ऑफ एपेटाइट, खासकर हार्ट के मरीज जिसमें जो पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, हार्ट का पंपिंग ठीक था, धीरे धीरे करके हार्ट का पंपिंग वीक हुआ, उसमें जो पहला कंप्लेन आता है जिसमें आपको अलर्ट रहना है कि ये पहले हार्ट फेलियर के पेशेंट थे, ड्रग्स पर बहुत अच्छा रिकवर कर गए थे, बट ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको आपको पता चलने पर आप उसका ट्रीटमेंट तुरंत इंटेंसिफाई करने से पेशेंट का एडमिशन को कम किया जाए, दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर मरीज को भूख लगना कम हो रहा है, सूजन बढ़ रही है, पेशाब कम हो रहा है, दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट साइंस और यू कैन से सिम्टम्स जो कि हम लोगों को डिटेक्ट करने होते हैं हार्ट फेलियर के मरीज़ में, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, जो कि मेडिसिन पे अच्छा कर रहे थे, बट ओवर द टाइम दे स्टार्टेड डेवलपिंग। इमीडिएटली उनको कार्डियोलॉजिस्ट का विजिट करना चाहिए एंड दे शुड इंटेंसिफाई द ट्रीटमेंट टू अवॉइड द हॉस्पिटलाइजेशन। कफ विथ फ्रोदी स्पूटम मीन्स जब आपकी लंग्स में ब्लड का रिसाव हो जाता है, जो कि हार्ट फेलियर का वन ऑफ द सिम्टम है, तो उसमें पिंक फ्रोदी स्पूटम हम कहते हैं कि मतलब आप जो थूकेंगे उसमें एयर भी रहेगा और थोड़ा ब्लड भी रहेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ द हार्ट फेलियर। रात में बार बार उठ के अगर आपको जाना पड़ रहा है, जो कि पहले नहीं था, दैट इज़ ऑल्सो वी कॉल एज अ नॉक्टूरिया, दैट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर। और अगर आप बहुत ज़्यादा सर्कुलेटरी इश्यूज हो रहे थे, कन्फ्यूजन्स और इम्पेयर्ड मेमोरी ऑल्सो, बट दिस नॉट अ वेरी स्पेसिफिक, दिस इज जस्ट अ जनरल कंप्लेन। सो वंस मोर, हार्ट फेलियर के क्या क्या इंपॉर्टेंट, सो सांस फूलना, पैर का सूजन आना, लैक ऑफ एनर्जी, स्पूटम दैट इज़ कंटेनिंग पिंक फोदी, पेट का सूजन आना, पैर का सूजन आना, रात में सोते समय तकिए का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या रात में सोते सोते उठ के बैठ जाना, जिसको कहते हैं पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया।
gain of the weight and more urination in the night. पैर का सूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेन रहता है जिसको लेके बहुत मरीजों के अंदर में कन्फ्यूज़न रहता है. हाउ टू नो दैट कि ये पैर का सूजन हार्ट के कारण है और ये किडनी और लीवर के कारण है. सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना है, पहले से आपको हार्ट का डिजीज़ है कि नहीं. अगर हार्ट का डिजीज़ है तो कुछ मेडिसिन्स रहती हैं जिसमें पैर का सूजन आना बहुत कॉमन है, जैसे हम लोग एम्लोडिपिन कहते हैं या निकार्डिया. सो ये मेडिसिन आपको जब चल रही है तो उसमें आपका जो सूजन जो रहेगा वो शाम के टाइम ज़्यादा रहेगा और सुबह जैसे ही उठेंगे उस समय या तो ना के बराबर होगा या नहीं होगा. तो ये जब आपको बिना ब्रेथलेस में, बिना सांस फूले इस तरीके का स्वेलिंग जो कि शाम के टाइम ज़्यादा है और मॉर्निंग के टाइम कम या नहीं है, वो माना जाता है कि ड्रग्स के कारण है. उसमें कभी कभी ड्रग्स को चेंज किया जाता है या उसको एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब इग्नोर किया जाता है कि इट इज़ ड्रग एसोसिएटेड, मेडिसिन इज़ वर्किंग, दैट्स वाई यू आर गेटिंग स्वेलिंग ऑफ द फीट, सो नथिंग टू वरी. बट पैर का सूजन और साथ में सांस फूलना दोनों चीज़ आ रहा है तो ये होता है हार्ट डिजीज़ का प्रोग्रेशन. और यहाँ पर हम लोगों को हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना और उसके ड्रग्स का ट्रीटमेंट एंड इवेल्युएशन कराना. तो सांस फूलना विथ लेग स्वेलिंग, इट इज़ अ साइन ऑफ हार्ट फेलियर एंड इट नीड टू बी इवेल्युएटेड. और सिर्फ पैर का सूजन जो कि किसी बीपी की दवा के कारण हो रहा है, वो दोनों चीज़ अलग अलग हैं. इसके बारे में तो बोल चुके हैं कि अगर आपको हार्ट डिजीज़ होगी, हार्ट को सारा काम करना होता है, पूरे जगह पर सर्कुलेशन पहुंचाना होता है. तो जैसे जैसे आपका हार्ट की पंपिंग वीक होती है वैसे वैसे आपकी थकावट, मतलब जो काम आराम से आप कर पाते हैं उसको करने में आपको थकावट होने लगेगी. और इसमें जब हम लोगों के पास पेशेंट आता है तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हार्ट का जो आपका पंपिंग कैसा है, जिसको इको करके हम लोग डिसाइड करते हैं. सो वेदर इट इज़ हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन और हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन. अब दोनों का डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं. यहाँ पर ट्रीटमेंट्स बहुत नहीं रहते, कुछ ही ड्रग्स रहती है जो काम करती है. और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और पर्टिकुलर ड्रग्स को देने से कुछ बहुत रिलीफ होता है. बट इसमें आपको स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रग, डिवाइसेज मीन्स पेस मेकर, एलवेट्स एंड फाइनली हार्ट ट्रांसफर, सब चीज़ इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं. इसलिए किस लेवल का ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर होगा, दैट वी हैव टू डिसाइड. थर्ड, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो एंड माई स्पेशलाइजेशन ऑल्सो, दैट इज़ अरिथमिया. सो ये एक एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को कंप्लेंट्स रहते हैं एंड दे गो टू द जनरल कार्डियोलॉजिस्ट, एंड जहाँ पर उनके कंप्लेंट को या तो बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है या बहुत देर तक समझा नहीं जाता. एंड दीज आर द कंप्लेंट दैट नीड्स अ डेडिकेटेड टीम वर्क. और समटाइम जो कहते हैं कि उसमें बारीकियों से देखना पड़ता है क्योंकि ये एक ट्रांजिएंट फिनोमिना, ये ऐसा इवेंट नहीं कि जो कि आपको चलता रहेगा. इसके कंप्लेंट्स क्या रहते हैं, अरिथमिया होने पर क्या क्या हो सकता है. सो वन इज़ द पाल्पिटेशन, मीन्स धड़कन होना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेन. और ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल, दैट आई विल डिस्कस लेटर. दूसरा होता है डिजीनेस, मतलब बीच बीच में आपको चक्कर जैसा आ गया, या पैरोक्सिस्मल स्वेटिंग, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि हमको पसीने आए एक बैक एक और थोड़ी देर के बाद ठंडे हो गए. ये भी एक हार्ट की सिम्टम्स हैं जो कि एरिथमिया मीन्स हार्ट बीटिंग के इश्यूज़ में आते हैं. फेंटिंग अटैक, मतलब एक बैक एक बेहोशी हो जाना. कुछ लोगों में चेस्ट पेन भी आता है, दो इट इज़ नॉट ए डोमिनेंट साइन ऑफ एरिथमिया. और सडन कार्डियक डेथ, सडन डेथ अगर हो रहा है उसमें बहुत लिमिटेड कॉजेज होते हैं. मतलब जिन मरीजों को आपने कल तक देखा या जिस आदमी को आपने कल तक देखा और आज देख रहे हैं कि ही हैज़ डाइड, उसमें बहुत लिमिटेड कॉज होते हैं. एक होता है कार्डियक अरेस्ट, दूसरा होता है हार्ट अटैक. सो दोनों चीज़ डिफरेंट, आई विल कम अक्रॉस दोनों में क्या रहता है. कमिंग फर्स्ट फॉर द पाल्पिटेशन. सो धड़कन और बीटिंग्स जो बढ़ जाना, ये तरीके से लोग बोलते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा 1 या 2 बीट स्किपिंग हो रहा है. कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों में सीने में लगता है कुछ ज़ोर से मार रहा है. कुछ लोग बोलते हैं कि एक बैक एक हमारी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और उस समय कुछ घबराहट होती है. अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब भी हमको कोई टेंशन होता है उस समय धड़कन बढ़ जाती है, मतलब कुछ घबराहट जैसा लगता है. सो पाल्पिटेशन किसी को भी हो सकता है. पाल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट बीटिंग विच इज़ गेटिंग वेरी फास्ट और वेरी स्लो. यूजुअली फास्ट को ही हम लोग सेंस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. और पाल्पिटेशन जो अनप्रोवोक्ड, बिना कारण के अगर आ रहा है, दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ हार्ट डिजीज़. कुछ लोग बोलते हैं कि हम बैठे थे, एक बैक एक हार्ट बीटिंग इतनी फास्ट हुई
मतलब बेचैनी हुई उस टाइम में, और बाद में थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई। दैट पाल्पिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, एंड दैट पाल्पिटेशन इज़ कॉल्ड arrhythmia, that may be due to a lot of abnormal circuits in the heart, and that can be sometime curable also. So अगर आप ये देखें, सो नॉर्मली हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है उसका एक पल्स जनरेटर यहाँ पर रहता है जिसको कहते हैं हम लोग SA नोड, और उसके बाद एक यहाँ पर AV नोड जो ट्रांसमिट। जब तक हार्ट के लोअर चैम्बर्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगी तब तक हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा एंड हार्ट बीटिंग स्टार्ट नहीं होती है। सो हार्ट बीटिंग स्टार्ट का चैम्बर जो रहता है राइट अपर चैम्बर स्टार्ट है, और इसको एक ही रास्ते से के थ्रू नीचे आना रहता है। अगर किसी कारणवश हार्ट का जो इंसुलेशन अपर चैम्बर लोअर चैम्बर इसमें कहीं भी ब्रीच हुआ, एनी ब्रीच इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन अपर एंड लोअर चैम्बर, वी कॉल दैट दे आर हैविंग पाथवेज, मतलब इसमें एबनॉर्मल कुछ शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, एंड दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट हार्ट रेट। सो उसमें इस तरीके से होता है कि यहाँ पर पेशेंट का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, यहाँ से एक सर्किट बन गया है, और उसके कारण हार्ट बीटिंग जो रहेगी एक बैक 150, 200, 250 तक पहुँच जाती है। मीन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल ब्रीच देर इज़ द SA नोड AV नोड जो नॉर्मली कंडक्शन पाथवे में रहते हैं, उसके अलावा कोई भी एबनॉर्मल सर्किट बनेगा उस टाइम में हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी एंड यू विल बी डेवलपिंग पाल्पिटेशन। सो दैट इज़ a very common reason for some patient who are having totally normal heart, but they complain that I am getting palpitation, and most of the evaluation जो किए जाते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल रहते हैं, and that's why ये सारे मरीज़ जो रहते हैं उनको गिडीनेस और समटाइम्स सिनकोप, मगर हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट है जो कि लोअर चैम्बर से आ रही है, इट मे लीड टू सिनकोप एंड समटाइम लीड टू सडन डेथ ऑल्सो। कमिंग टू द कॉजेज़ ऑफ फेंटिंग, सो ये एक एरिया रहता है जो कि बहुत ही पेचीदा रहता है, क्योंकि कभी भी बेहोशी होती है हर आदमी को ये सोच होती है कि ये ब्रेन का प्रॉब्लम है, और ब्रेन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लोग CT MRI करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ टाइम इट टर्न आउट टू बी नॉर्मल, एंड पेशेंट आर गिवन सम मेडिसिन्स एंड लेटर ऑन द कंप्लेंट्स इज़ ऑन गोइंग। सो फेंटिंग के जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज रहते हैं कि ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना या हार्ट बीटिंग का बहुत फास्ट या बहुत तेज होना। आइदर द हार्ट बीटिंग इज़ वेरी फास्ट और वेरी स्लो, आइदर ऑफ द थिंग्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिडीनेस, एंड वेन एवर इट इज़ हैपनिंग इट नीड्स अ डिफरेंट अप्रोच। डिफरेंट अप्रोच मीन्स सिनकोप हो रहा है या फॉल हो रहा है या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो आपने बहुत सारा टाइम देखे होंगे कोई आदमी लोगों को फ्रैक्चर हुआ है, मतलब गिरने के कारण फ्रैक्चर हुए, फ्रैक्चर होने के बाद उनकी सर्जरी की गई, सर्जरी वॉज वेरी सक्सेसफुल, दे वेंट होम, चूँकि एल्डरली थे, पेशेंट को ये नहीं पता चला कि उनको हुआ क्या था, लेकिन फ्रैक्चर कर लिया, और घर में जाने के बाद 3 से 4 दिन के बाद ऑल ऑफ ए सडन दे डाई। द रीज़न इज़ they were having what you call some electrical problem we call as a VTVF, जिसके कारण वो गिरे, एरिथमिया हुआ था, उसके कारण गिरे, फ्रैक्चर हुआ। हम लोगों ने फ्रैक्चर और फ्रैक्चर के कॉज का इवेल्यूशन करना, बिकॉज वो सारे मरीज जो घर पर जाके ऑल ऑफ ए सडन डेथ कर जाते हैं, जो विद इन कह सकते हैं 1 घंटे या 24 घंटे का भी टाइम नहीं मिलता और वो डेथ कर जाते हैं, जिसको कहते हैं सडन डेथ, दैट इज़ ड्यू टू एरिथमिया, एंड दैट्स वाई फ्रैक्चर शुड नॉट बी फ्रैक्चर ऑफ द लोअर लिम्ब और एनी हेड इंजरी। जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है कि गिरने का कारण क्या था, इट हैज़ टू बी इवैल्यूएटेड बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। और जहाँ कहीं भी बेहोशी की चीज़ें आ रही हैं, मतलब बीच बीच में पेशेंट बेहोश हो जा रहा है या गिर पड़ रहा है, विच वी कॉल एज सिनकोप, इट हैज़ टू बी सीन बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट देन अ न्यूरोलॉजिस्ट। एंड वाई आई एम सेइंग, देखना दोनों को चाहिए, बट सिनकोप कहते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन यू आर हैविंग ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस विथ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये मतलब ऑल ऑफ ए सडन आप एक बेहोश हो गए और थोड़ी देर के बाद आप रिकवर कर गए, इसको कहा जाता है सिनकोप। और ये जो होता है सर्कुलेटरी इशू के कारण, मतलब हार्ट जितना ब्लड पंप करना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और यू कैन से फ्रैक्शन 10 से 30 सेकेंड्स के ड्यूरेशन में वो नहीं कर पाया ड्यू टू हार्ट रीजन, द पेशेंट हैज़ डेवलप सिनकोप। और उस सिनकोप के कारण ब्रेन को उस एबनॉर्मलिटी के कारण ब्रेन को सर्कुलेशन नहीं मिला और इट हैज़ बिकम ऑफ फॉर ए शॉर्ट टाइम। लेटर ऑन जैसे ही वो नीचे नॉर्मल गिरता है या कहते हैं कि सुपाइन पोजीशन में आता है, सर्कुलेशन रिगेन हो जाता है बाय द होम्योस्टेसिस एंड पेशेंट
is having all these things in the normal. So all of a sudden collapse होना, recover करना is a sign of a heart circulatory failure. एंड यहाँ पर जो कॉजेज़ रहते हैं वो उसमें एक अरिदमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल रहेंगे ड्यूरिंग द अटैक और ड्यूरिंग द कोलैप्स उनका या तो पल्स बहुत ही फास्ट या बहुत ही स्लो हो रहा है या बीपी का ड्रॉप हो रहा है. ये दोनों चीज़ को लेबल करना या मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. अनलेस यू आर हैविंग डिवाइस और लूप रिकॉर्डर यू कांट बी एबल टू डू इट. सो जो भी टेस्ट किए जाते लोग बोलते हैं कि हम गिरे थे, हमने सारे टेस्ट कराया, ECG, इको, एंजियोग्राफी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. सो लेकिन उसके बाद ही बना हुआ है. देन यू नीड अ कार्डियोलॉजिस्ट हु इज़ प्रैक्टिसिंग इन द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी. देन योर कंप्लेंट्स हैज़ टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम द एरिथमिक एंगल एंड उसके बाद ही हम लोग किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आपका रीज़न क्या था उस समय का कोलैप्स का. कभी कभी ECG में कुछ बारीकियां रहती हैं, जो कि बारीकियां इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट लोग जो हु प्रैक्टिस इन दैट एरिया दे कैन गिव यू कि इनके ECG में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एरिथमिया के कॉज हो सकते हैं. उसके लिए EP स्टडी करना एंड फाइनली उसको ट्रीट करना और उसको इवेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सडन कार्डियक डेथ. सो कहा जाता है विटनेस डेथ विद इन 1 आवर और अनविटनेस डेथ विद इन 24 आवर्स इज़ टेकन एज ए सडन कार्डियक डेथ. मीन्स जिस आदमी को आपने 1 घंटे में मरते हुए, मतलब आपके सामने में देखा और एक ही कोलैप्स्ड, नॉट रिगेन्ड और रिसिस्टिकेटेड किया गया, लेकिन 1 घंटे में डेथ हो गई, उसको कहा जाता है सडन कार्डियक डेथ. और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है वो लोग बोलते हैं कि जब एक 24 साल का आदमी जो कि पार्टी में गया या हु वाज जस्ट प्लेइंग ऑल ऑफ ए सडन ही डाइड, व्हाट वाज द कॉज. उसमें तो ना सिगरेट पिया, ना उनकी कोई हैबिट्स थी. ही वाज डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेज एंड ही वाज हैविंग अ वेरी गुड फैमिली हिस्ट्री. व्हाई ही हैज़ डाइड? दो इट इज़ अ वेरी सिंप्लीफिकेशन, बट इसका जो रूट कॉज होता है बिकॉज अप स्ट्रीम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स रहते हैं वो जो उनकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और उसमें एक टाइम आता है जो कि ट्रिगर, जो कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है कि एक्सरसाइज करते हुए पेशेंट का डेथ हो गया या दिस इन दैट पर्टिकुलर actor has died while doing the exercise, so exercise is bad. This is not the story. The story is that he is having some upstream factors, मतलब पहले से कुछ कारण थे, उसके कारण कुछ सबस्ट्रेट बने, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे उसने उसको ट्रिगर किया एंड दैट वाज द रीज़न. सो ट्रिगर खराब नहीं था, बीमारी कुछ अंदर में चल रही थी जो कि एक ट्रिगर के कारण हुई और उसके कारण सडन डेथ हुआ. सो वी हैव टू सी वेदर द सबस्ट्रेट्स आर देयर और नॉट. जब ये कुछ फैमिलीज़ में हार्ट के कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि दैट नीड्स अ डिफरेंट इवेल्युएशन स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेटिक्स to the electrophysiology study and sometime different subset of the tests. तो उसको करने पर हम लोगों को ये पता चलता है कि इनके अंदर में इलेक्ट्रिकल सबस्ट्रेट है विच कैन प्रेजेंट विद सडन कार्डियक डेथ. या किसी फैमिली में एक आदमी को हुआ है तो दूसरे होने का चांसेस बने रहते हैं, या नहीं भी हुआ है तो कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ECG में या MRI में दिख रहे हैं जिसको हम लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा विद द डिवाइस थेरेपी और EP स्टडी. सो सडन कार्डियक अरेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग. इट इज़ मोर अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम और उसमें हम लोग फिर EP स्टडी करके उसको कभी कभी कंफर्म भी किया जाता है. एंड कमिंग टू द लास्ट स्लाइड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम लोग सोचते हैं ना कि हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक अरेस्ट दोनों एक चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. हार्ट अटैक जो हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज़ समथिंग वी कैन से इट इज़ अ सर्कुलेटरी, मतलब जो आपके हार्ट के अंदर में खून की नली में ब्लॉक आता है उसको कहते हैं हार्ट अटैक. और जब इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है, मतलब हार्ट बीटिंग ऑल ऑफ ए सडन बहुत फास्ट हुई और बंद हो गई, उसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसमें सेकंड से मिनट्स में पेशेंट का डेथ होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यू टू द एरिथमिया. सो दिस पार्ट इज़ बीन डेल्ट बाय द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट. एंड इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि लोग ECG, इको, कार्डियक एमआरआई एवरीथिंग कर दिया, एंजियोग्राफी भी कर दिया, बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, बट द पेशेंट डाइड समवेयर लेटर. और उसका रीज़न यही था कि सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं. इट नीड्स
evaluation by electrophysiologist, and in that situation he may give some insight regarding the condition, and that makes a lot of difference. So it should be a team approach between electrophysiologist, intervention cardiologist, and genetist to know what is the reason for sudden death in the family, and we get some insight. So comparing cardiac arrest with heart attack is different. Heart attack मतलब खून की नलियों में रुकावट, जहाँ पर आपको सीने में दर्द, भारीपन सब आता है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको खून ECG देख के कंफर्म करते हैं, इमीडिएटली दे ट्रीट बाय गिविंग द क्लॉट ब्रेकिंग मेडिसिन्स और स्टेंटिंग, एंड पेशेंट टोटली गेट नॉर्मलाइज्ड. बट कार्डिक अरेस्ट जो होता है वो सर्कुलेटरी अरेस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल रीजंस. सो आपके हार्ट बीटिंग ऑल ऑफ ए सडन बहुत फास्ट होती है, जो कि सर्कुलेशन को कोलैप्स करते हैं, एंड देन यू आर रीचिंग टू द डॉक्टर, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर द लाइफ ऑफ द पेशेंट. So thank you so much. If you are having any questions, I will be happy to answer. कुछ questions post किए हैं, let me try. सो एक क्वेश्चन आया हुआ है, हेलो डॉक्टर, काइंडली स्पेसिफाई द डाइट फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट स्ट्रोक. यस, सो हार्ट स्ट्रोक के बारे में, डाइट के बारे में ऑलरेडी लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस, बट डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉट एवर यू आर टेकिंग, इंडियन डाइट्स इज़ ऑलवेज गुड. सेकेंड थिंग, जो क्वांटिटी हम लोग जो लेते हैं वो क्वांटिटी को जितना मतलब व्हाट यू कॉल बैलेंस्ड रखना. मतलब कोई भी चीज़, नॉन वेजिटेरियन अगर आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड रिस्ट्रिक्ट. और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है खाने का टाइमिंग, किस टाइम में हम लोग खा रहे हैं, दैट मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंट. सो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, एंड certainly if anything is there I will let you know, I can answer you. So it is almost 40 minutes we are here. If you are not having any question, we will close. Mr. Dan, Peter Denny, and as well as Ravinder Reddy, all are there. So thank you for finding time. Next week, same Thursday, Friday, we will meet at 3 o'clock. And if you are having any questions related to that, you can post. I will try to address those topics. And thank you so much for watching. And if you are having any questions and anything you want to learn or you want to know, I will be very happy to answer in the coming YouTube live, Heartbeat Live on next Friday.